Assalamu alaikum to everyone. Today we will discuss about the differentiation of sin x cos x by the ab initio method or first principle. But we all know that all the trigonometric functions which started with the co like cos, cot and the cosec usually have the negative differentiation. For example, differentiation of the cos x that is minus sin x. Differentiation में बच्चों जो को आगे लगता है जैसे को cos, ठीक है, कॉट कॉस एंड द कोसेक यूजुअली इनकी क्या होती है नेगेटिव डिफरेंशिएशन. जैसे कि कॉस की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज माइनस साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द कोसेक एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स. बट इन केस ऑफ द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन में जो हम देखते हैं नॉट बिगिंस विद द को लाइक साइन sec theta and that is called as the tan theta usually have the negative differentiation. For example, differentiation of the sec theta that is sec into tan x. sin theta की जो differentiation होती है that is cos x. tan theta की differentiation जो होती है that is tan square x, sec square x, sec square theta. So we have to differentiate of the sin x by the ab initio method. We all know that in the ab initio method we should to remember the 4 steps. One, that is the giving increment on the both sides. Step number 1. इसके बाद बच्चों हम निकालते हैं change, rate of change, ठीक है. इसके बाद to find the change. Third step is to find the rate of change and the fourth step is that is giving increment on the both sides by the delta x. So the differentiation of sin x by the ab initio method. Let y is equal to sin x. आप मान के चले y एक यहाँ पर एक फंक्शन है sin x. Call it equation first. इसके बाद हम small increments देते हैं on the both sides in case of the ab initio method. That is y plus delta y is equal to sin x plus delta x. Call it equation second. To find the change, जब हमें change निकालनी होगी तो हम equation first से second equation में क्या कर लेते हैं subtract. That is y plus delta y minus y is equal to sin x plus del x minus sin x. यहाँ से like terms cancel, y and y there cancel each other. So delta y is equal to sin x plus del x minus sin x. Del y is equal to sin x plus del x, sin की जो differentiation होती है that is cos x minus cos. So del y is equal to 2 cos x plus del x plus x divided by 2 into sin x plus del x minus x divided by 2. तो यहाँ पर हमने क्या किया, we have to subtract the equation first from second. तो यहाँ पर क्या बचेगा, del y is equal to 2 cos 2x plus x that is 2x del x divided by 2 into sin. यहाँ से like terms cancel, x cancel हो जाएगा, del x divided by 2. तो एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला sin p minus sin q is equal to 2 cos p plus q divided by 2. बच्चों ये फार्मूला आप रट लेना, इसको याद रख लीजिएगा. sin p माइनस sin q किसके बराबर होता है, 2 cos p plus q डिवाइडेड बाई 2. तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया इस स्टेप में, ठीक है. इसके बाद स्टेप नंबर 3, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज. जब हमें रेट चेंज निकालनी होगी तो क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x by 2 plus del x by 2. So both sides divided by 2 into sin del x by 2 del x by 2. So delta y divided by del x is equal to 2 cos 2x plus del x divided by 2. यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, sin del x by 2 del x divided by 2. इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है ab initio मेथड में, अप्लाइंग द लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 del y by del x is equal to लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 cos of x plus del x divided by 2 into sin del x by 2 del x divided by 2. dy by dx is equal to cos of x plus 0 that is x plus del x by 2 that is 0 limit delta x tends to 0 into sin del x by 2 del x by 2. तो यहाँ पर भी एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, sin theta tends to sin theta divided by theta is equal to 1. So dy by dx is equal to cos of x plus 0 into 1. तो यहाँ पर del x by 2 sin theta divided by theta. तो ये फार्मूला बन गई sin theta डिवाइडेड बाई थीटा, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू 1. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 0 दैट इज एक्स इंटू 1 दैट इज कॉस एक्स. इसके बाद हम ये इक्वेशन यहाँ पर कॉल इट इक्वेशन फिफ्थ, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वाई इन इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद इसको हम सबस्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, वाई की जगह हम डालेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन, ठीक है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो डिफरेंशिएशन जो होती है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बाय द ab initio मेथड दैट इज कॉस एक्स.
ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस एक्स। बच्चों अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स की। तो आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिनके सामने को लगता है, ठीक है, विच बिगिंस विद द स्टार्ट को, जैसे कि कॉस, कॉट और कोसेक, ठीक है। बच्चों इनकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन की बात अगर हम कर लेंगे, इंटीग्रेशन में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके सामने को नहीं लगता है, जैसे कि साइन, सेक एंड टेन, इनकी डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। जिनके सामने को लगता है उनके सामने कौन सी डिफरेंशिएशन होगी, दैट इज नेगेटिव डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो कॉस की डिफरेंशिएशन होती है, इट स्टार्ट्स विद द को, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। तो इसको हम एब इनिशियो मेथड से प्रूव कर लेते हैं। पहले हम एब इनिशियो मेथड में क्या काम कर लेते हैं, हम इंक्रीमेंट देते हैं ऑन द बोथ साइड्स, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम निकालते हैं चेंज, टू फाइंड द चेंज, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं थर्ड, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। जब हमें रेट ऑफ चेंज निकालनी होगी तो हम डिवाइड कर लेते हैं बाय द डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप हम क्या कर लेते हैं, हम अप्लाई लिमिट्स ऑन द बोथ साइड्स, लिमिट्स देते हैं ऑन द बोथ साइड्स। तो यहां पर हमारी जो फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसके बाद हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स देते हैं ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, दैट इज y प्लस डेल्टा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, टू फाइंड द चेंज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, दैट इज वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। यहां से लाइक टर्म्स हम कैंसिल कर लेते हैं वाई एंड वाई। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 साइन, यहां पर हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉस पी माइनस कॉस क्यू किसके बराबर होता है, दैट इज कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, एंड द साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर होता है माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूला को हम पुट कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में हम इस फार्मूला को पुट कर लेते हैं, दैट इज डेल वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहां से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा इनटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ये फार्मूला का आया है, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन डेल्टा एक्स प्लस 2 टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। सो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 इंटू 2 इंटू डेल एक्स बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये इस फार्मूला का है। सो डेल्टा वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। फार्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। इसके बाद लिमिटेज हम देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2। तो ये फार्मूला चलती है अभी भी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1 डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डेल एक्स बाई 2 इंटू 2 बाई डेल एक्स, दैट इज 1, दैट इज 1, ठीक है। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सबस्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जहां पर हमने y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y की जगह हम इस इक्वेशन पुट कर लेंगे dy बाई डी एक्स। तो y की बदला हम क्या लिखेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x की दैट इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू 1 दैट इज माइनस साइन एक्स। सो डिफरेंशिएशन जो होती है cos x की बाय द अब इनिशियो मेथड दैट इज माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ द cos x इज द माइनस साइन एक्स। यहाँ पर को आगे लगा, इसमें जो डिफरेंशिएशन होती है बिगिंस विद द को, लाइक cos, cot और cosec, उनकी जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज नेगेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द cos x बाय द अब इनिशियो मेथड और द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिव रूल, ठीक है। नाउ द प्रोडक्टिव रूल। Now the productive rule. This rule is also called as a UV form. Productive rule is also called as a UV form.
यूवी फॉर्म और प्रोडक्ट रूल स्टेटस इफ यू एंड वी आर द ओनली टू फंक्शंस। अगर आपके पास यू एंड वी दो फंक्शंस है देन डी बाई डी एक्स ऑफ द यू इंटू वी इज इक्वल टू, पहले हम u को बाहर निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ द वी, डिफ्रेंसिएशन v की हो जाएगी, इसके बाद v को बाहर निकालते हैं, सो डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ द u। तो इस पर एक न्यूमेरिकल होता है डिफरेंशिएशन दैट इज ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी बाय द यूवी फॉर्म। तो ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम इन द यूवी फॉर्म और द प्रोडक्ट रूल। पहले हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ax प्लस बी बाहर निकलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ द सी एक्स प्लस डी, पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगी सी एक्स प्लस डी की, इसके बाद सी एक्स प्लस डी को बाहर निकालते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगी ax प्लस बी की, सो ax प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ द सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द डी प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द बी। ठीक है, तो पहले एक को बाहर निकालते हैं दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर पहले की डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी इंटू सी दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स प्लस जीरो प्लस सी एक्स प्लस डी ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स प्लस जीरो, सो ए एक्स प्लस बी into c into 1 that is dx by dx that is cancel with each other that is 1 plus cx plus d into a into 1 ax plus b into c plus cx plus d into a that is ax into c that is ax c plus bc plus acx plus ad ax c that is 2acx plus bc plus ad. This is a differentiation of the ax plus b cx plus d in the uv form. ठीक है, now the differentiation of the 9x plus 6 4x plus 1 by the uv form. So d by dx of the 9x plus 6 4x plus 1 is equal to 9x plus 6, पहले 9x पहले टर्म को बाहर, दूसरी टर्म को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं d by dx of the 4x plus 1, इसके बाद पहली टर्म बाहर निकलेंगे, दूसरी टर्म पहली वाली टर्म को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं d by dx of the 9x plus 6, 9x plus 6 d by dx of the 4x, पहले 4x की डिफरेंशिएशन प्लस d by dx of the 1, फिर 4x प्लस 1 को बाहर निकालते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगी 9x की प्लस d by dx ऑफ द 6, सो 9x प्लस 6 4 इंटू d by dx ऑफ द प्लस 0 4x प्लस 1 d by dx ऑफ द x प्लस 0, 9x प्लस 6 इंटू 4 d by dx ऑफ द x प्लस 0 प्लस 4x प्लस 1 d by dx ऑफ द x प्लस 0। यानी यहाँ पर पहली टर्म जो होती है इसको बाहर निकालते हैं, दूसरी की डिफरेंशिएशन, पहले दूसरी को बाहर निकालते हैं, पहली की डिफरेंशिएशन, 9x प्लस 6 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4x प्लस 1 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज 9x प्लस 6 इंटू 4 that is 6 4 are 24 9 4 are 36 6 4 are 24 plus 36 plus 9 36x that is 72x 24 plus 9 that is 33 is the differentiation of the 9x plus 6 4x plus 1। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना और हमारे चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।